Okay, so continuing in part 2, so multilateral systems that would be focused upon similar goals. इसमें basically global south, voice of global south, that was major thing जिसको emphasize किया गया था अभी 2023 वाले summit में. And BRICS के बात करो, IBSA की जो member countries हैं, which includes India, Brazil and South Africa. So तीन ही countries है, इसमें often confusion हो जाता है. G4 grouping में Brazil, Germany, India and Japan. So they support each other for the UNSC membership. So that is what G4 is meant for. So Brazil presently host of the IBSA. So IBSA particularly कौन सी चीज पे like major objective क्या है of formation of IBSA? India, Brazil, South Africa, मतलब South cooperation ही है. So this is called Troika भी बोलते हैं हम इसको. Global solidarity, ये सब चीजें मतलब Brazil would be promoting and taking forward this. So government was ombudsman for the air travelers also. We've talked about the safety और क्या measures लिए जाने चाहिए for the security and safety of the aviation sector. It is among the major reforms needed to improve the air travel in India. We have talked about कि जो pricing mechanism है, there needs to be a proper fixed formula for that, because civil aviation sector में we are seeing somewhere oligopoly is going on there. So there's a possibility, या मतलब अभी भी possibility हो सकता है कि it might be working, they might be deciding the prices according to monopoly या cartel basis के ऊपर. तो collusive manner में they might be deciding the prices. So कोई proper mechanism अभी नहीं है. So that's there. And recently we also saw कि जो Directorate General of Civil Aviation है, we were talking about safety from the perspective of कि pilots जो है उनको कितना sleep time उनका और वो सब manage करना important है. Mental stress, that they shouldn't be stressed, because we've of late seen कि the cases of strokes going up, heart attacks going up. Air Seva portal that has been launched by the Ministry of Civil Aviation. Digi Yatra has been launched, so we are seeing even electronically भी initiatives लिए जा रहे, so that ease of air travel हम और ज़्यादा improve कर सकें. So यहाँ पे we also talked about the practice of like unavailability of free seats. मतलब आप booking करते हो, deepfake की हम यहाँ बात कर रहे थे. प्राइसिंग के अराउंड आप टिकट के लिए प्राइस पे करते हो, बट आपको सीट के लिए भी एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ता है, तो दैट इज समवेयर नॉट जस्टिफाइड. So even now again, Kolkata ka bhi AQI is deteriorating fast ahead of the Deepavali. So we talked about Delhi NCR region, we talked about Mumbai. Now we are seeing ki Kolkata is the next hotspot for worsening of AQI. So data was collected post Durga Puja festivities, and obviously we see ki the end is marked by the idol immersion processions and beginning of the sale of the firecrackers, because of the next festival is Diwali. So Switch On Foundation hai, they analyze the data from the 7 continuous ambient air quality monitoring stations of the Central Pollution Control Board. So according to that, the air quality is worsening over there, struggling to breathe. So reasons they are common again: traffic and vehicular density is high, firecrackers, industrial की वजह से जो festivities हैं, that is a problem. Construction activities is a problem. There is no such cyclonic even forecast for the years, like slow down the wind speed. So wind एक important factor रहता है for the dissipating of the pollutants. So even अगर like cyclone भी होता है, तो वो भी एक तरीके से देखा जा रहा है कि relief measure ही लेके आएगा specifically इस problem के लिए. एंड ऑफन अभी तक जो एक माइंडसेट रहता था कि साइक्लोन इज अप्रोचिंग, तो वो डिजास्टर की तरह देखा जाता था, बट वहां से साइक्लोन भी एक रिलीफ मेजर हो सकता है. So Ashik, anything new you want to add and discuss over here? No, Mansi, इसको ले लिए हम लोग कल भी और आज भी. Okay, so this is important. World will overshoot 2030 fossil fuel limit by twice over. So जो limit है by 2030 we would be
exceeding it by twice the amount, मतलब double the amount would be exceeded by 2030. So like this is going to be a very problematic thing. Notwithstanding the global consensus among the countries, the fossil fuels emissions would be eliminated. We are trying. एक side तो हमारा जो goal है, that is carbon neutrality. We're trying to eliminate the fossil fuels के ऊपर जो हमारे dependent हैं, greenhouse gases emissions हो रहे हैं. But at the same time, report ये बोल रही है कि 2030 तक we would be basically twice over it. So clearly, मतलब forecast के according तो we see कि dependence हमारा increase होने वाला है on this. And so next COP summit would be there in Dubai. This is a factual thing. And loss and damage fund हम बात कर चुके हैं. Then we seeing the production gap report is the name of the report जिसने इस चीज को like release, मतलब ये हर साल ही होते हैं. It is prepared by the Stockholm Environment Institute, Climate Analytics, E3G, International Institute for Sustainable Development, and the United Nations Environment Program. So this is important factual detail. ये ऐसे questions prelims में पूछे जाते हैं कि basically who publishes the particular report. So these are the name of the publishers. So they assess the government's planned and projected production of coal, oil, and gas against the global levels consistent with the Paris Agreement's temperature goal. मतलब कि यहाँ fossil fuels का भी ये जो data है, that is analyzed, extrapolated on the basis of जो government के projects and planning है, जो उसमें जितना fossil fuel use हो पाएगा, हो मतलब हो सकता है, उसके बेसिस पे थोड़ा मतलब इसको अगेन ये थोड़ा रियलिस्टिक ही रहता है. सो रिपोर्ट एनालाइजेस एमिशन ट्रेंड्स फॉर द 20 मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, विच में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, और दीज आर द ऑल कंट्रीज. कैन जस्ट गो थ्रू देम. एंड so many governments are also promoting fossil fuel as an essential transition fuel, but with no apparent plans to transition away from it later on. ओके सो ये हो गया बहुत ज्यादा आयरॉनिकल एंड कॉन्ट्रडिक्टरी चीज देखी जा रही है. So enforcement directorate का कहना है 30% जो राशन एंड द पीडीएस दैट इज डाइवर्टेड टू द ओपन मार्केट इन बंगाल. सो ईडी इज लुकिंग इनटू दिस थिंग, मतलब ओके. अब कहाँ enforcement directorate had to look into जो financial cases हैं, cases of crimes, यहाँ पे पीडीएस में भी it is saying कि 30% डाइवर्ट हो रहा है. मल्टी डायमेंशनल रूल है उनका. हाँ. Okay, then. So Union Home Ministry seeks Aadhaar authentication for the prisoners and the jail visitors. ई प्रिजन From सिस्टम. perspective of हाँ. अभी ईएफआर पढ़े थे हम लोग. ई प्रिजन सिस्टम ये हम- है क्या? लिखा हुआ है कहीं पर? देखना होगा. आप देख पढ़ो, मैं देखता हूँ. E-prisons वही है कि you will be using this electronically यूज होगा from the perspective of increasing the security, क्योंकि prisons में we are seeing किस तरीके से murders हो रहे हैं, या even gangs they are also functioning from the prisons. So from that perspective ये एक e-governance के ठीक है, इसमें देखा perspective has been कि introduced. बेसिकली एमएचए के अंडर में फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया है 100 करोड़ रुपीस फॉर डेवलपिंग ई प्रिजन प्रोजेक्ट. अब ये क्या कर रहा है? बेसिकली डेटा जो भी है इंटीग्रेट किया जाएगा पुलिस कोर्ट सिस्टम अंडर अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. और एनआईसी इसको डेवलप कर रहे हैं. एनआईसी किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर. हाँ. इसका बात कर रहे हैं कि जो भी एरर है, टाइम टेकिंग होता है ना, कि आप ट्रायल के लिए कितना समय लगेगा, ये सब ऑनलाइन हो जाएगा. कन्विक्शन रेट ठीक होता है, लॉसेस ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाते हैं कभी कभी, वो सब को डील करने के लिए. और फिर इंडिया जो में हाँ नंबर ऑफ प्रिजन्स का भी हमें आइडिया होना चाहिए. सो दिस वुड बी मेड फंक्शनल अराउंड 1309 प्रिजन, मतलब टोटल प्रिजन्स इट इज अराउंड 1378 प्रिजन्स इंडिया में है. सो हाँ, नंबर और एक और प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में, तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट है.
So USA would be investing $553 million in Adani's Sri Lanka port terminal जो project है तो उसमें USA would be also investing. So US International Development Finance Corp to fund the Adani's ports JV's building deep water shipping container terminal in the port of Colombo. So compromise deal बोला जा रहा है इसको. Adani Ports have signed a $700 million deal with the Sri Lanka's Ports Authority. Sri Lanka's conglomerate John Keel's Holdings in September 2021 में इसको sign किया गया था to jointly develop this terminal. So the move followed an abrupt decision by the former president Gotabaya Rajapaksa. He was ousted from the power by the People's Uprising and उसकी वजह से this project got stalled. So with this, we saw the impact the government of India and Japan, they were moved out of the East Container Terminal project at the same port. So because of political uncertainty, it got impacted, and obviously this has led to the additional cost that has to be incurred in completing it. So RBI may cut the rates in 2024-25 agar VC ki food inflation is tamed. So food inflation kaise tame ho sakti hai? Supply side measures say ही it can be tamed because it is being it is a you can say supply disruption की वजह से जो inflation हो रही है. So मैंने इस चीज को बहुत बार spot किया है कि like monetary policy ज्यादा help करती है in taming the inflation because of the demand side problems. So supply side के लिए and but ये interlinked तो है ही चीज है. अगर food inflation control हो पाएगी तो RBI भी तभी rate cut करेगा. मतलब जो transmission mechanism की अगर मैं बात करूं in the rate hike and its impact on taming the supply side inflation, so वो बहुत कम है. But still RBI increases the repo rate. So जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं फोकस उसी पे होना चाहिए. We can't control the weather, our focus is on cricket. So time should be effectively utilized on enhancing and improving your skills. So All India Football Federation was hurled into crisis after its top brass decided to remove its Secretary General, citing breach of trust. So decision appeared to be the culmination of months of disagreement of happening within the executive committee over the several issues related to the sports finances and administration ke around. It was believed that there was breach of trust on these issues. And All India Football Federation hereby announces that the services of Dr. Shaji they have been terminated due to the breach of trust with the immediate effect. So arbitrary decision according to the Federation, he earned displeasure of the president and executive committee members owing to some arbitrary decisions and actions. So transparency and accountability is very important. And when we talk about the Vision 2047, specifically football ke context mein, so what other decisions? So the senior national men's team made it to the top 100 in the FIFA rankings for the first time in 2018 and sought to achieve more targets under its vision plan. So taking obviously the Indian football team at the global level amongst the top ranks. So obviously administratively functioning jo hai, that is important. Transparency वहाँ होना चाहिए. Like what are the basis of taking a decision? That should be collective and the basis should also be transparent. So financial decisions बहुत ज़्यादा important role play करते हैं, specifically sports में. So औशिक आपको यहाँ पे और कुछ discuss करना है इसके around कुछ? नहीं मानसी. ठीक है, okay, now we can take up the Indian Express newspaper. Now coming to the Indian Express newspaper. Uttar Pradesh becoming sports capital. How? तो इसमें बात है कि new sports policy has been introduced at a national level and with the formation of state sports authority declared.
तो इससे कोऑर्डिनेशन करने में आसान होगा एट अ ग्रासरूट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। एंड स्टेट सोर्स स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड विल बी क्रिएटेड, और ई स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। तो मानसी, ई स्पोर्ट्स है क्या इसमें, अगर देखें? लाइक जो वी आर सीइंग की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही। हम्म। सो मतलब गेम्स जो होंगे, डिजिटल गेम्स होंगे, उसमें भी स्पोर्ट्स कंपटीशन करना, उनको ई स्पोर्ट्स तो बोल। ई स्पोर्ट्स सही में स्पोर्ट्स है? नो, आई वोंट से कि जो एक्चुअल हमारा मेन जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, ई स्पोर्ट्स में मेंटल स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले करेगी, बट एक्चुअली थोड़ा आई वुड से कि वीकर वर्जन ऑफ जो हमारा आइडिया ऑफ द फिजिकल स्पोर्ट्स या कन्वेंशनल स्पोर्ट्स जो रहा है, वो हो जाएगा थोड़ा सा वीकर, या फिर डाइल्यूशन ऑफ द स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे आपका आई वुड इसमें में आपका रिफ्लेक्सेस ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करेगी। हाँ, तो आप ये हाँ, ये बोलते हैं मेंटल जो स्ट्रेंथ है, मेंटल जो एजिलिटी है, कि आप हम्म। अचानक से आप देखते हो काउंटर स्ट्राइक खेले या फिर आप, तो उसमें मेंटल कैलिबर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ। स्पोर्ट्स इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल, तो इस मेंटल की बात हो रहा है, तो ई स्पोर्ट्स मेंटल ज्यादा है, फिजिकल बहुत कम। और बाकी जो स्पोर्ट्स है वो फिजिकल ज्यादा है इसमें। तो ये हो गया। तो ये अच्छा था। तो तीन एरिया जहाँ पर स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स, स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ई स्पोर्ट्स का प्रमोशन एंड स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो वाटर स्पोर्ट्स का इंडिया में क्या उसको बढ़ा सकते हैं लोग, तो क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स में इंडिया आगे नहीं है अभी देखा जाता है तो। हाँ, लेकिन इंडिया के पास वर्सेस एडवांटेज हाँ। है, लाइक हाँ, जो अगर आप स्विमिंग से रिलेटेड बात करोगे, वो तो ठीक है, इंडोर्स भी वो फैसिलिटीज क्रिएट की हम कर सकते हैं, बट जो हमारी कोस्ट लाइन है, इतना बड़ा जो एडवांटेज है हमारे पास, सी में कुछ ऐसे लाइक कॉम्प्लेक्सेस कुछ ऐसा बना सकते हैं, फैसिलिटीज इवन नॉट अगर कॉम्प्लेक्सेस, तो वो हम एडवांटेज ले सकते हैं अगर प्रॉपर लाइक फैसिलिटीज हो, वी हैव दी प्रॉपर ट्रेनर्स, सो दैट कैन बी टेकन तो एडवांटेज। मानसी, इज फिशिंग इज अ पार्ट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स? आई थिंक सो, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। मतलब इंटरेस्टिंग है, फिशिंग भी है हाँ। इसमें। हम्म। और दूसरा चीज की उसमें बाकी जो बोलते हैं ना, पैराग्लाइडिंग, स्कीम बोर्डिंग सब है। तो हाँ हम लोग वो। आई स्पोर्ट्स भी बेसिकली हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो भी करना चाहिए क्योंकि हम लोग आइस कैप भी है इंडिया में। हम्म। तो हाँ, तो और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो फेमस स्पोर्ट्स इंडिया में सबको पता है, वो बोट रेस केरला में। तो बोट रेसिंग में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम्म। अभी कब से। बाकी में भी प्रमोट कर सकते हैं बाद में। तो क्या क्या अभी स्कीम है, तो खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये तीन है। मेडिकल इंश्योरेंस आर गिवन टू द स्पोर्ट्समैन अंडर द आयुष्मान भारत योजना एंड ऑल्सो द एकलव्य स्पोर्ट्स फंड, तो इसको भी ले सकते हैं। इंडिया फर्स्ट एवर मोटो जीपी, मोटो जीपी इज बेसिकली रिलेटेड टू द F1 फॉर्मूला रेसिंग एंड विच इज हेल्ड एट बुध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा। ये हमेशा वहीं पर होता है, इंडिया के पास एक ही है अभी। इसमें मानसी, लेकिन आपका क्या कहना है कि ऐप बेस्ड कैब्स फ्रॉम अदर स्टेट हैव बीन बैंड, विल इट इम्पैक्ट द पोल्यूशन इन दिल्ली? लाइक पोल्यूशन तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन कैब्स वी आर सीइंग दे आर मोर सीएनजी कैब्स हैं जो रन करती हैं, तो मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा ऑन द पोल्यूशन अगर आप उनको बैन कर रहे हो, क्योंकि वो एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है पोल्यूशन में, जो कैब्स की अगर हम बात करें, क्योंकि सीएनजी कैब्स हाँ हम हाँ। बोलते हैं। हम्म। तो इवन लाइक लेकिन तब कैब्स को भी बस अलाउ हाँ। करना चाहिए, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको बैन करना चाहिए, जो ऑड इवन स्कीम में अभी बात हो रही है, बैन नहीं, जो शॉर्ट पीरियड के लिए इसको इम्पोज करेंगे। सो पब्लिक की जो ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटेशन में, उसमें कैब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, इवन कार पूलिंग की फैसिलिटीज और प्रमोट हो सकती है थ्रू दीज कैब्स। हम्म। स्कूल बस को भी ई बस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनके भी रूट होते हैं, और हम्म। मॉर्निंग इवनिंग के, तो उनके अकॉर्डिंग भी सोचा जा सकता है। जैसे ट्रेवल नॉर्मल दिल्ली में बसेस चलाई जाती है, उसी तरह से स्कूल बसेस में चेंज लाई जा सकते हैं। हाँ, मतलब यहाँ मेरे को हम्म। बेसिकली समझ में आया कि स्टेट्स फ्रॉम अदर कैब्स दे वुड बी बैंड, अगर सीएनजी पे रन हाँ तो कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वो है ना कि एक पॉलिटिक्स है कि दूसरे जगह से आ रहे कैब, और उनके कारण पॉल्यूशन हो रहा है इसके कारण, तो ये हम्म। बेसिकली फेस सेविंग है। और इसका कोई रूल ज्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता। Then coming to the next article, we can talk about how US and India
is pausing its alliance in the economic sphere also, as US agency is committing to invest 553 in the Adani's Colombo project to contain the Chinese influence. ये ले चुके थे पहले तो So we can take this. पूसा 44 बेसिकली राइस वैरायटी होता है, एनूस राइस वैरायटी कैन रिप्लेस पूसा 44। और जो इससे रिलेटेड है बेसिकली ओवरऑल स्टबल बर्निंग एंड पंजाब में जो वाटर क्राइसिस जो हम लोग कल बात किए थे, ग्राउंड वाटर क्राइसिस, उस पर भी इम्पैक्ट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग एक नया राइस वैरायटी बनना है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट रहे और लेस वाटर इंटेंसिटी हो। ये ले चुके हैं हम लोग 4000 से अधिक होम स्टे, रोपवे कनेक्टिविटी, हॉर्टिकल्चर, पॉली हाउसेस। सेफ्टी गियर, द केन ऑफ एयर इंडिया स्टाफ हु फेल टू डेथ। तो बेसिकली सेफ्टी गियर का जो चैलेंज है ना वो हर फील्ड में इंडिया में अगर देखा जाए तो, राइट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज टू सीवेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज फैसिलिटीज से लेकर के इंडस्ट्री में भी और यहाँ पर भी। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल जो होता है वो आई थिंक शुड बी प्रमोटेड, कल्चर शुड बी प्रमोटेड बाय बोथ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स देते भी हैं लेकिन एम्प्लॉयज इसको यूज नहीं करते क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा भारी होता है। तो ये सब भी चैलेंज है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। आई थिंक इट्स पुलिस में भी होता है ये चीज़, सेफ्टी गियर। Safety gear, yes. So check the label before buying. वो advertisement एक बार ले सकते हैं. I think that is for green crackers या किस चीज के ऊपर था? This one. फर्स्ट में उससे रिलेटेड है वो। Legal Metrology Act 2009. Packaged commodities rules हैं. ठीक है, यहाँ पे मतलब वो बेसिक और दूसरे चीज हाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ हाँ लेबल, हाँ लेबल को देखना चाहिए। What caused pollution last winter? Stubble burning, secondary inorganic aerosol, vehicles, source study. So secondary inorganic aerosol, which are mostly expected to travel from far distances to be made to be highest. दूर दूर से आ रहा है, तो ये कारण है। और दूसरा बाकी सब क्या के कारण 32% है बेसिकली बायोमास बर्निंग, 24%, 17% व्हीकल से, 7% कोल एंड फ्लाई ऐश। तो सेकेंडरी और इनऑर्गेनिक एरोसोल क्या है? बेसिकली इट इज अ पार्टिकल ऑफ द नाइट्रेट अमोनियम फॉर्म्ड इन द एटमोस्फियर बाय द इंटरेक्शन ऑफ द गैसेस, इसलिए सेकेंडरी है। प्राइमरी होता है मतलब कि डायरेक्टली, सेकेंडरी मतलब फॉर्मेशन उसका हो रहा है रिएक्शन के साथ बाय द इंटरेक्शन ऑफ द गैसेस। Made an Index X investor meeting ahead of 2+2 India-US ministry dialogue. We have already taken up कि फर्स्ट 2+2 हुआ था 2018 में बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। उसके बाद से हर साल बाकी सब कोऑर्ड पार्टनर साथ भी 2+2 डायलॉग होते गया। तो इसमें दो ये फैक्चुअल चीजें भी, एक तो इंडस एक्स हो गया और आईडेक्स जो है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, दिस इज आल्सो बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। हाँ आईडेक्स, Index X was launched in 2023 with the state visit of Prime Minister Narendra Modi to US.
to expand strategic technology partnership and defense industrial cooperation between the government, business, and academia. Unhappy with children, UP government may give senior citizen right to legally evict them. इससे क्या कहना है आपका मानसी? तो बेसिकली यूपी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि आप लीगल राइट्स दोगे पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस को टू evict their children and anyone living in their house if they're not happy with them. इस पे क्या बोले, बहुत ही डिफरेंट सा इनिशिएटिव है. मतलब ऑब्वियसली यू विल नीड इसे टू, हाँ बोले, मैं मतलब बोलूंगा. किस बेसिस पे डिसाइड करोगे यू विल नॉट बी हैप्पी विद द चिल्ड्रन, सो दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. पहले तो बेसिस क्या रहेंगे. सेकेंडली, अगर मतलब सपोज किसी चिल्ड्रन को फॉर वट एवर रीजन लीगली evict कर दिया जाता है फ्रॉम द हाउस, सो वी नीड टू लुक इनटू ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी की एस्पेक्ट, मतलब पूरा लिविंग के अराउंड व्हाट वुड द चाइल्ड डू, एज ऑफ द चाइल्ड पे क्या बार होगा, मतलब किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि वहां पे भी ऑब्वियसली कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो रहेगी ना. इट वोंट बी कि आप किसी भी बच्चे को घर से बाहर निकाल दोगे. एंड ऑल्सो यू नीड टू लुक इनटू द एज के बेसिस पे भी द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इट वेरीज. मतलब चाइल्ड माइट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग द सिवियरिटी जो वो कर रहे हैं बिकॉज ही और शी इज अ चाइल्ड. तो वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी. मतलब यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि आप eviction इज गोइंग टू बी अ सोल्यूशन. उससे और एक प्रॉब्लम और मेनेस क्रिएट हो जाएगी. अब मैं बताता सीनियर हूँ सिटी इसमें. हाँ बोले, इतना बोले भी थोड़ी है कि एज लिमिट इतनी ज्यादा कम रखेंगे बच्चों की कि अगर सीनियर सिटीजन्स को दे रहे हैं तो. ठीक, मैं बताता हूँ. पहली बात इसमें वो दिया हुआ है कि देर इज अ जो एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007. अब है कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ केसेस रहे हरासमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन की, बेटा या बेटी कमा रही है और फिर माँ बाप को होता है ना मारना वारना या फिर हरास करना, मेंटली हरास करना, अगर ऐसा होता है तो आई थिंक द केस कैन बी फॉर्म्ड. दूसरा जो इसमें इशू है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर उसके उनका भी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पापा का प्रॉपर्टी था, तब उसमें एक क्लॉज हो सकता है जिसमें इस बच्चे को भी एक राइट्स मिले. तीसरा जो है कि जैसे बच्चे रह रहे अगर घर पे, तो एक होता है ना मेंटेनेंस देने के लिए कितना परसेंट देना चाहिए मेंटेनेंस फॉर द पेरेंट्स, ये सब केयर, ताकि इसको केयर कर सके सीनियर एज अ ओल्ड एज में. तो वो अगर नहीं मिल रहा है तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा. तो ऐसा नहीं कि आज बोल रहे हैं तो कल ही एविट किया जाएगा, तो 30 days के लिए दिया जाएगा बेसिकली. तो आई थिंक दिस विल बी रिलेटेड टू द एडल्ट पॉपुलेशन विद 20-25 ईयर्स के ऊपर या फिर 30 ईयर्स के ऊपर. ऐसा नहीं होगा कि बच्चों का बात हो रहा है बच्चों यहाँ पर. को होगा. चिल्ड्रन मतलब कि एडल्ट ही बड़े चलो. का बात हो रहा है. हाँ, स्टिल अगर आप बच्चों को evict करने का वाली चीज भी एज अ सोल्यूशन लेके आ रहे हो, तो वो तो अगर आपके साथ भी नहीं रहेंगे तो तब भी दे कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ना. लेकिन साथ में रखे होता है ना कि उनका बच्चे चाहते हैं कि अपने बाप का प्रॉपर्टी हड़प ले, तो मारना पीटना भी एक चैलेंज रहता है. वही मैं कह रही हूँ तो कि ये अगर हराश का भी रहता है. तो evict भी उसका एक करोगे तो वो लीगल तो. सोल्यूशन क्या है, तो लीगल सोल्यूशन ये ट्राई, अभी हुआ नहीं लेकिन मे लिखा हुआ है. हम्म. हाँ मे तो गिव. भी सोचा जा रहा है इसके ऊपर. ये बात कर चुके हैं हम लोग पॉल्यूशन का. क्या रूल यहाँ लिखा हुआ है, फीमेल पार्टिसिपेशन. तो पहले ये ले लेते हैं. We didn't start the fire, it was always burning. मानसी. Okay, we didn't start the fire, it was always burning. So like इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे. लाइक मैं कोई एग्जांपल सोच रही हूँ कि लाइक कोई ऐसी चीज मतलब बैकग्राउंड में हो रही हो एंड इफ वी आर नॉट टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ दैट, उसको एक्नॉलेज अगर नहीं कर रहे हैं. सपोज क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, सो इनिशियली अगर वी वुड हैव फैक्टर्ड इन की फ्यूचर में इफ इसी तरीके से पैटर्न ऑफ जो डेवलपमेंट रहेगा आने वाले टाइम में, ग्रीन हाउस गैसेज, नो वन वाज लाइक, ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें पता ही नहीं था ग्रीन हाउस गैसेज मतलब क्या होती है. अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इस चीज को मतलब फैक्टर इन करना इंपॉर्टेंट था पहले ही ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही अगर हम बात करें बाय द एडवांस्ड कंट्रीज. सो
वो बेसिकली, अब इसको हम डेवलप्ड और डेवलपिंग के कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड करके बात कर सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज बोल सकते हैं कि वी डिड नॉट स्टार्ट दिस थिंग, इट वाज ऑलवेज बर्निंग, इट वाज लाइक ऑलरेडी बर्निंग, इट वाज ऑलरेडी हैपनिंग। तो मतलब एम्पलीफाई हो गया ये विद टाइम, जब चीजें बहुत ज्यादा एक लार्जर स्केल पे इम्पैक्ट देखने लगे। तो एक क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से दैट्स हाउ आई विल इंटरप्रेट दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक मैं ये इसमें एग्जांपल स्टार्ट लो। शो हाँ, कर रहा है कि ब- आपके लाइक इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप ऐसा कोई एग्जांपल लेते हो, तो इट इज शोइंग यू आर नॉट being onerous for something, or you're not taking the responsibility of something, अब you're just shifting the burden कि आपने ये चीज नहीं स्टार्ट करी थी, या you're not responsible for this, ये पहले से हो रहा था। something like this can also be। मैं बताऊंगा हम इसमें कि इसमें जो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे ले सकते हैं। एग्जांपल लेंगे ग्लेन मैक्सवेल का, कि जो फायर अंदर में होता है ना, फायर मतलब कि स्टार्ट पहले से बर्न कर रहा था, लेकिन समय आता है जिसमें अंदर का जो आदमी का पोटेंशियल होता है हाँ वो वो, हम अचीव कर सकते हैं। लाइक ही इट वॉज वाज ऑलवेज बर्निंग। ही और वाज हाँ, ऑलवेज बर्निंग, लेकिन बीच में होता है कि कॉन्फिडेंस लो होने से या फिर प्रेशराइज प्रेशर इन्वायरमेंट काम करने से फिर कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है, डिपेंड करता है हम कितना पोटेंशियल अचीव कर सके। तो वो वाला कि ह्यूमन के अंदर में जो इंटेंशन होता है, इनोवेशन होता है, वो हमेशा रहता है, हाँ लेकिन हम लोग को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। तो वैसे टाइप इट वाज ऑलवेज बर्निंग तब। ठीक है, हाँ वैसे हो सकता है, ओके। A matter of integrity, India's democracy matures. CAG role becomes very more important in good governance. The Comptroller Auditor General of India plays a crucial role in ensuring transparency, accountability, financial integrity in the government functioning. सेपरेशन पावर को मेंटेन करता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी को देखता है, ऑडिटिंग करता है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है, रिड्यूसिंग द इनएफिशिएंसी एंड अडहेरिंग टू द फिस्कल एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और तो बेसिकली इसमें बात किया जा रहा है कि जो इंडियन सिटीजन है, इनको भी एक सेंटर स्टेज मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। जैसे सोशल ऑडिटिंग हो गया, एंड एडिंग टू द सीएजी ऑडिट। सीएजी का ऑडिट तो होता ही है, लेकिन सोशली कैसे जो भी फाइनेंशियल स्कीम हुआ है वो तो वहां तक लोगों तक पहुंच गया, लेकिन क्या वो बेनिफिशियल रहा लोगों का, उसके लिए सोशल ऑडिट इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सिटीजन पार्टिसिपेटरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सिटीजन एंगेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विथ रिगार्डिंग टू द ऑडिटिंग। और कैसे कर सकते हैं? विथ यूज ऑफ वही कि 5G कनेक्शन हो गया, या डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, डिजिटल डैशबोर्ड हो गया, और भी अलग अलग सोल्यूशन के हिसाब से। तो हमने बात की कि पहले भी इंडिया का जो रोल रहा है फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द बलवंत राय मेहता कमेटी टू, तो पीआरआई का गठन हुआ 1973 एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट से। उसके कारण लोकल बॉडीज को एम्पावर्ड हुए विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल कमीशन, डायरेक्ट फ्लो ऑफ फंड आज भी दिया जाता है। और जो फाइनेंस कमीशन है वो फंड देते हैं, तो लोकल बॉडीज का जो मैक्सिमम जो रोल होता है वो बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट रादर देन दे डोंट हैव एनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विथ रिस्पेक्ट टू रेजिंग ऑफ द रिसोर्सेस। तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। और इसमें तो कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं सीएजी का जो ट्रांसपेरेंसी? तो इसमें एक तरीका दिया हुआ है कि फॉर द ऑडिट एंड प्लानिंग मेथोलॉजी, टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट इज रिकमेंडेड। कैसे उनका जो रोल है, कैसे उनका जो मेथोलॉजी है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं ऑडिटिंग अकाउंटिंग का। उसके बाद सेकेंडरी वुड बी टू वर्क विद द लोकल गवर्नमेंट एट अ वेरी लोअर tier and collaborate with the Institute of Chartered Accountant to set the online courses to create a pool of accountant। तो अकाउंटेंट अच्छा रहेगा तभी जाकर के आप ऑडिट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो उसके लिए ICAI इसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। और फिर ऑडिट दिवस बेसिकली किया जाता है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑडिटिंग, और उसके हिसाब से अवेयर किया जाता है हर एक जगह पर, रूरल एंड अर्बन एरिया में। तो
ओवरऑल यही बता रहा है कि हम्म हम लोग को और सीएजी का जो रोल है उनको एक्सपैंड करना चाहिए, रादर देन सिर्फ गवर्नमेंट और के तरफ में उनको एक्सपैंड कैसे किया जाए ऑडिटिंग को, ऑडिटिंग एज अ टूल को। तो उसमें सोशल ऑडिटिंग का बात किया गया ओवरऑल, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको स्किल डेवलप करने का बात किया गया, और तीसरा की जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का जो मेथोलॉजी है उसको चेंज करने का बात, तो ये तीन ही चार So, फोर Ashik, आपका क्या एरियाज है। कहना on like do we have private auditing firms or not? हाँ, प्राइवेट ऑडिटिंग फंड है इंडिया में, केपीएमजी ये सब तो प्राइवेट ऑडिटिंग है फंड। हाँ, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो स्किल्स हैं वो ये रोल प्ले करेंगे ज्यादा, उनकी ट्रांसपेरेंसी और क्या बेसिस है। हाँ, फिर दिया हुआ है कि इन द रिसेंट सर्च इन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, तो बताया कि पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फॉर ऑल एजेस रोज फ्रॉम 36.9% टू 42%। विमेन का बात किया जा रहा है, नहीं रूरल एरिया में 18.2 था तो बढ़ के 30% हो गया। तो ये बोल रहे, इसे काउंटर कर रहे कि क्या वो हाँ एनोमली है, क्या दिक्कत है यहाँ पर, कि सही में ट्रेंड ऐसा है। तो देर इज नो बर्निंग, most of its new entrants are not a regular salaried wage, मतलब कैजुअल वेज वर्क लेबर और रेगुलर सैलरीड नहीं है, दे आर रादर देन सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ले सकते हैं कि जो ट्रेंड बढ़ा है लेबर पार्टिसिपेशन रेट में विमेन में, उनका बेसिकली बढ़ा है इन द सेल्फ एम्प्लॉयड, और दे हैव देयर ओन अकाउंट enterprises and helper in the household enterprises. This indicates wage और salaried employment opportunity। तो एक एरिया इसका ले सकते हैं। दूसरा, तो औशिक, इस पे आपका कहना क्या है, हाँ, मतलब कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ तो इट इज अ गुड थिंग, और लाइक इट दोनों है, डिपेंड करता है सेल्फ एम्प्लॉयड कहाँ पर है। आप अगर एसएसजी से आपका बड़ा है, ब्रांड वैल्यू बड़ा है, और फिर मुद्रा लोन से आपका अर्निंग बड़ा है, तो वही लिखा हुआ नीचे वाले में हम्म कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बड़ा है, लेकिन फिर वहां पर जो इनकम है, तो एवरेज अर्निंग जो है वो माइन्यूटली बढ़ा है, सिर्फ हाँ। 5 साल में सिर्फ 1,500, सिर्फ बढ़ा 1,000 रुपया, 1,000 रुपया हो गया एक तरह से 5 साल में, वो बढ़ा है। दिस इंक्रीज इनकम वॉज बेयरली इन लाइन विद इन्फ्लेशन। तो क्या इनकम सही बढ़ा है, वो एक चैलेंज है आपका, जो सेकंड क्वेश्चन जो था उस पर। मतलब थर्ड वुड सेल्फ बी एम्प्लॉयमेंट कि में हाँ, भी बढ़ रहा है तो वो लोअर लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब मेजर ऐसा नहीं कि दे आर कमिंग अप एज अ हाँ, पार्टिसिपेंट्स इन स्टार्टअप, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, और दूसरा कि जो फीमेल कैजुअल वेज लेबर है इन द प्राइवेट मार्केट, सच है मनरेगा हो गया बाकी सब में, वहां पर भी उनका प्रोडक्टिविटी या फिर उनका वो भी बढ़ा है कि नहीं, वो भी चैलेंज है। एग्रीकल्चर सेक्टर में फेयरली हेल्दी रेट है, क्योंकि फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर बात करती है हम लोगों से। और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कारण मुद्रा लोन हो गया, एसएचजी हो गया, उसके कारण भी बढ़ा है। एमएसएमई भी, और रिवर्स माइग्रेशन में देखा गया है। तो ये सब चैलेंज है। ठीक है कौशिक, इन तो ओवरऑल, जल्दी हाँ, से फिनिश कर दो या तो एक। ओवरऑल दो ही है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि बड़ा है लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बड़ा है, और दूसरा चीज उनका जो सैलरी है वो भी एक स्टेडी रेट नहीं बढ़ा है, वो बहुत बहुत धीरे माइन्यूटली वो इन्फ्लेशन के अराउंड ही हो रहा है सिर्फ। तो आई थिंक दो एरिया है पूरा आर्टिकल में से रियल जो हमें इनकम फोकस करना इंक्रीज नहीं देखी है। गई है। हाँ, रियल इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, नहीं, हाँ नहीं। ठीक है, वी कैन टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो।